द सर्वे इज फेक। निखिल जैन बोल रहे हैं सर्वे फेक है, स्टेट ने नहीं करवाया। अच्छा, पहले मैं बता देता हूं फिर निखिल को। निखिल देखिए 2025 से 26 आ गया, पर निखिल का लैक ऑफ प्रिपरेशन ऑन बेसिक फैक्ट्स नहीं गया। मुझे बड़ा दुख होता है देख के। निखिल इज सच अ क्वालिफाइड लॉयर और बेसिक्स नहीं पढ़ते निखिल। ये सर्वे एज पर अ टेंडर कराया है कर्नाटका मॉनिटरिंग एंड इवैल्यूएशन अथॉरिटी ने। इलेक्शन कमीशन ने मैंडेट किया और गवर्नमेंट के पास जाके कहा कि आपको कराना है। उस गवर्नमेंट ने कर्नाटका मॉनिटरिंग एंड इवैल्यूएशन अथॉरिटी के थ्रू कराया, विच रिपोर्ट्स टू द डिपार्टमेंट ऑफ प्लानिंग प्रोग्राम एंड स्टैटिस्टिक्स। सो दिस इज इशूड बाय अ टेंडर एंड दिस ऑर्गेनाइजेशन, द ग्राम ऑर्गेनाइजेशन, विच हैज वन, बाय द वे, you will be surprised Pranesh, it's doing 2 more projects for the Karnataka government. 2 projects कौन से? Study on district planning committee and compliance with emerging model. They've started this project as late as September 2025 and they're going to complete it by October 2026. Nikhil should read about it. The another project that they are doing is evaluation studies on impact of NHM in Karnataka. Another project which has been given to them by the state government. So Nikhil, it is the state government that entrusts this organization. अब ये सुप्रिया वाला जो बयान था, जो कह रही थी कि इसके हेड ये हैं इसलिए ऐसा है, तो भाई 2 और प्रोजेक्ट्स दे रखे, एक नहीं दे रखा। और बताऊं आपको प्रणेश, ये तेलंगाना के भी प्रोजेक्ट्स कर रहे हैं, तमिलनाडु सरकार के लिए भी प्रोजेक्ट्स कर रहे हैं। आई मीन you know, Rahul Gandhi today has reached a place where he will go down along with Pele and Maradona, the only difference being that he has scored self goals rather than goals against the opposition. This man has been debunked by his own party member B.N. Rajanna, you would remember. He threw B.N. Rajanna under the bus. He quoted CSDS. Sanjay Kumar did a U-turn on that. So how many times should Rahul Gandhi be embarrassed so that they accept the truth finally? And किशोर जी ने जो बात कही, बिल्कुल अंडर एस्टिमेट नहीं कर रहे हम राहुल गांधी को सर। 2026 इज इज ईयर, 95 लॉसेज हैं, 5 चुनाव हैं इस साल। मेरा मानना है इस बार वो शतक पूरा करेंगे। दिस विल बी अ न्यू अकॉम्प्लिशमेंट इन द हिस्ट्री ऑफ इलेक्टोरल पॉलिटिक्स। वन मैन able to come up with so many losses, that is an achievement in itself. और जहां तक हमारे जो सपा के स्पोक्स पर्सन है, भाई उनका तो 2009 का मैनिफेस्टो था कि टाइपराइटर पे जाना चाहिए, कंप्यूटर बैन हो जाना चाहिए, इंग्लिश बैन हो जानी चाहिए। कल को अगर वो कहेंगे कि नहीं हमें बैलगाड़ी से जाना है, गाड़ी वाड़ी छोड़ो, साइकिल भी छोड़ो, बैलगाड़ी से जाना है, वी कांट टेक वी कांट गो बैक टू द एंशिएंट टाइम्स प्रणेश। एंड टुडे द इलेक्टोरल ईवीएम, इफ वी टॉक अबाउट इट, backed by VVPAT, 41 court judgments in its favor, upheld by the Indian Statistical Institute in terms of errors, increased its level of scrutiny to 5 VVPATs per constituency. I mean, what else do we want in 2026? That is my question to the opposition. At least now wake up. रवि श्रीवास्तव जी। Thank you very much, Pranesh. Very happy New Year to you. You too, sir. I think you have read everything in the survey, but you have not read about the 45% of the respondents have talked about the influence of money in the elections, which is the worst thing to happen. You have not talked about it. You have not talked about 85% people trust the EVM. I'm not saying about the EVM. What Rahul Gandhi talks about is the process and the transparency in the electoral system. It is voters' perception or voters' confidence does not help anyway. It's the process. The transparency should be there. The 200 addresses at one place, at 0 flat a house number for hundreds of people. And you say, BJP says, where you win election, you don't talk about the election vote chori. Yes, Rahul Gandhi won Karnataka and picked up Anand and that Mahadevpura for the surveys. And the press conference done by him showed all kind of... रवि श्रीवास्तव जी, पहले तो आपने जो निखिल और डॉक्टर मुनि ने किया, आपको लगा कि लेट मी टेक इट अ बिट अ नॉच हायर। आप बोल रहे हैं 45%, ये बोल रहे हैं सर मनी पावर तो 100% रोल है। हु इज डिनाइंग दैट? बट दैट डज नॉट मीन वोट चोरी होती है ना, वो एक अलग इशू है। उसमें ऑल पार्टीज मस्ट कम टुगेदर, लेट्स टॉक ऑफ इलेक्टोरल रिफॉर्म्स देन। But that is not to say that वोट चोरी हैपेंस। रवि श्रीवास्तव जी ऐसे कंफ्यूज मत कीजिए ना। राहुल गांधी जी मनी पावर नहीं बोलते, वो कहते हैं कि वोट चोरी हो रही है, इलेक्शन चोरी हो रही है। वो कहते हैं नरेंद्र मोदी का जो मैंडेट है वो सस्पेक्ट है। फिर वो इलेक्शन कहां रहा?
सर इलेक्शन कहां रहा फिर वो? फिर तो पैसे बांट लो और वोट ले लो, और वही हो रहा है। सर आप एक पिटीशन फाइल कीजिए सुप्रीम कोर्ट में, लेट्स हैव अ लार्जर डिस्कशन ऑन द रोल ऑफ मनी पावर। मैं आपसे अग्री कर रहा हूं उसमें, मैं आपसे अग्री कर रहा हूं, बट दैट इज सर दैट हैपेंस इन ऑल पॉलिटिकल पार्टीज एंड इट डज नॉट मेक इट राइट। और इलेक्टोरल बॉन्ड्स का पूरा पैसा लेके कांग्रेस पार्टी ये मनी पावर और उसका विरोध कर रही है, ये जैसे वो कहते हैं ना हिपोक्रेसी की सीमा, सारी सीमाएं आप लोग क्रॉस कर चुके हैं। इलेक्टोरल बॉन्ड्स का तो पैसा वापस कर दीजिए संजू वर्मा।